morning to all the students who are watching this video. I know you are very well at your home. So in last video we have discussed about the South India, about the Cholas, about the Cholas, Cheras and the Pandyas and their powerful expansion, military expansion. Okay, now we are starting. So let's get started. So the chief, we will study about the chief did not collect the taxes. Okay, instead of direct collecting the taxes, they demanded for uh, gifts. Okay, and they have also supporters, their families, their poets. Poets used to write about in favor of the kings, so they get rewarded in terms of gold, jewelry, elephants, chariots. Okay, now the around 200 years later, dynasty known as Satavahanas that we have to study today. This is the dynasty Satavahanas. Okay, Satavahanas become powerful in the Western India. Okay, it was a very powerful kingdom in the Western India. Western India. The most important ruler of the Satavahanas are Gautami Putra Shri Satkarni. Gautami Putra Satkarni was the most powerful ruler of the Satavahanas. Gautami Putra Shri Satkarni. Gautami Putra Satkarni was the most powerful ruler of the Western India, of the Satavahanas. Okay, and on the behalf, how do we know that the Gautami Putra was the very powerful of the kingdom of Satavahanas? The most important ruler he was on this all are inscribed composed by his mother. Okay, his mother inscripted about his son. Okay, Gautami Balashari. Her name was Gautami Balashari. Mother name is Gautami Balashari. Okay. She wrote about his son Gautami Putra Satkarni. Okay, it is we found it through the archives of history of India. Okay, now the Gautami Balashari, he and other Satvahana rulers were known as lords of the Dakshin Path. We also call Dakshin Path is called South India. South India को उस टाइम पे दक्षिण पथ कहते थे और जितने भी रूलर्स थे उनको दक्षिण पथ कहा जाता था. जो भी साउथ इंडिया के रूलर्स थे, वेस्टर्न इंडिया के सतवाहनास के जितने पावरफुल रूलर्स थे उनको क्या कहा जाता था? दक्षिण पथ. Kings were known as Dakshin Path. Okay, means South India. South मतलब दक्षिण और लॉर्ड्स ऑफ द, इनको लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ कहा जाता था कि वहां के ये भगवान है, लॉर्ड्स है. ओके, विच वाज आल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर द एंटायर साउदर्न रीजन. फिर धीरे धीरे जितने भी साउदर्न रीजन थे सबको ही ये नाम दिया गया. नाउ ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट. इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने अपने आर्मीज को भेज दिया था ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न कोस्ट में. ठीक है, इन लोगों ने अपने मिलिट्री पावर को इन लोगों ने एक्सपेंड किया था. The question arises here, what do you think he wanted to control the coast? वो क्यों कंट्रोल करना चाहते थे कोस्ट? आंसर इज वेरी इजी. दे वांटेड टू कंट्रोल ऑल द कोस्ट्स बिकॉज दे वांटेड सम टैक्सेस एंड इन द इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग डायरेक्ट टैक्सेस दे वांटेड दे हैड गिफ्ट्स. तो वो क्या करते थे कि वो गिफ्ट्स का डिमांड कर लेते थे कि आप मुझे टैक्स मत दो, इसके जगह पे आप मुझे प्रेशियस स्टोन्स दे दो, आप मुझे जो सिल्क फैब्रिक है वो दे दो. ओके, now the story started about the Silk Road. Silk Road, important topic is in this chapter.
I'm going in very detail on each topic of this chapter, so it will take a time, but don't worry, it will get clear to you all. सिल्क रूट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. ओके, सिल्क, वी ऑल नो अबाउट द सिल्क. हम अपने घरों में भी सिल्क के फैब्रिक देख चुके हैं. हमारे हमारे आपकी मदर के पास भी सिल्क की साड़ी होंगी, सूट होंगे, स्टॉल होंगे. सिल्क के बहुत सारे गारमेंट्स आते हैं. एंड सिल्क इज अ वेरी एक्सपेंसिव काइंड मटेरियल इन टर्म्स इन क्लॉथ्स. ओके, और उस टाइम पे भी सिल्क बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे. One thing is important to note here. China was the first country who invented this about the silk, and they secretly बहुत सीक्रेट रखा था उन्होंने कि सिल्क के बारे में, वो कैसे सिल्क को निकालते थे विद द हेल्प ऑफ वॉर्म कोकून. ओके, तो द रिच ग्लॉसी एंड कलर्स ऑफ सिल्क, यू अगर आप प्योर सिल्क देखोगे तो बहुत शाइनी होता है, वो बहुत, उसका फैब्रिक बहुत हल्का होता है. ओके, एंड स्मूथ टेक्सचर होता है उसको, बहुत हाईली वैल्यूड फैब्रिक है वो अभी भी हमारे सोसाइटीज में. तो मेकिंग अ सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सिल्क को निकालना बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है, तब जाकर के एक सिल्क की साड़ी रेडी होती है. रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ अ सिल्क वर्म. एक वर्म्स आता है, एक कीड़ा होता है जिसके थ्रू हम उसको सिल्क को बनाते हैं, थ्रेड को बनाते हैं. उसको फिर हम स्पन करते हैं थ्रेड में, एंड फिर वुवन करते हैं क्लॉथ्स में. द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना, जैसा मैंने आपको बताया, अराउंड 7000 ईयर्स वो. द कंट्री वाज China. China was the first country who invented the process of making silk. It is complicated process और China kept it very secretly. ठीक है, but हुआ क्या था, while the method remained a closely guarded secret from thousands of years, some people from China who went to distant land on foot, horseback, on camel, carried silk with them. And the path they followed came to be known as Silk Route. फिर क्या हुआ था कि जो चाइनीज लोग थे ना, वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिए, वो मतलब अपने शहर को छोड़ के कहीं और जाके रहना शुरू कर दिए. तो वो पैदल चला करते थे. एट दैट टाइम पीपल डिडंट हैव अ व्हीकल्स, तो वो पैदल चलते थे बेयरफुट, एंड समटाइम्स वो कैमल्स के थ्रू में ट्रैवल किया करते थे. तो खुद के साथ अपने सिल्क जो फैब्रिक थी वो अपने पास भी रखा करते थे. तो उसके जो जो रूट फॉलो करते थे ना, वो जहाँ से वो चल के आते थे, द रूट दे फॉलोड इज कॉल्ड अ सिल्क रूट. सो द पाथ द चाइनीज ट्रेडर्स followed the route is called a silk route. I hope it is clear to everyone. The path the Chinese traders move or they followed is called a silk route. Sometimes Chinese rulers sent gift of silk to rulers of in Iran and West Asia. As we discussed that the silk was a very expensive fabric. तो उस टाइम पे क्या करते थे, जो रोमन्स होते थे उनके भी फेवरेट हुआ करते थे सिल्क. तो वो क्या करते थे कि सिल्क जैसे कि किसी को गिफ्ट करना होता था तो वो सिल्क ही गिफ्ट किया करते थे. तो सिल्क गिफ्ट किया करते थे वो, तो किसको किसको क्या करते थे, ईरान में किया करते थे और वेस्ट एशिया में क्या करते थे. और वहां से द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट, और वहां से फिर सिल्क के बारे में लोगों को जानकारी मिली कि अच्छा ये सिल्क है, ये ऐसे बनता है. तो जो सिल्क की प्रॉपर जानकारी थी, उसके ओरिजिन प्लेस पता चला सबको, तो ये सारा फिर स्प्रेड हो गया. Okay, it was very expensive as it had to be brought all the way from China. चाइना से लाते वक्त में क्या होता था कि दे हैड टू, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रूट. लोगों को क्या होता था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेजर्ट्स हुआ करते थे, डेजर्ट थे, जब बहुत चलने में परेशानी होती थी डिजर्ट्स में. उनको पहाड़ हुआ करते थे क्योंकि उस समय रोड इतना स्मूथ नहीं था, इतना अच्छा रोड नहीं बना हुआ था. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था उनके लिए, बहुत टफ होता था चाइना से सामान ले आना. ठीक है, तो जो डिमांड करते थे बहुत ज़्यादा पेमेंट वहाँ से जो वो लेके आते थे, और जो पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू. तो जो लोग आसपास में रूट के रहते थे ना, द पीपल, वो डिमांड करते थे ट्रेडर से कि आप इस रास्ता को फॉलो कर रहे हो, इट्स ओके फॉलो करो, बट आपको इसके बदले में पेमेंट हमें करना होगा, आपको कुछ देना पड़ेगा. आप इस रास्ते से जा रहे हो तो आपको हम हेल्प करेंगे, बट आपको हमें कुछ देना पड़ेगा.
ठीक है। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ दिस रूट। अब यहाँ पे बात क्या हो गई कि जब सिल्क के बारे में इतना हल्ला मच रहा है तो लोगों ने क्या किया कि हर कोई उसमें अपना फायदा ढूंढना शुरू कर दिया, पीपल ने फायदा ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद लोग भी डिमांड करने लगे। नाउ किंग ऑल्सो इन्वॉल्व, किंग भी डिमांड करने लगे। वो क्या करते थे कि वो आसपास के एरिया को कवर करना चाहते थे ताकि जो भी ट्रेडर्स वहां से पास करें वो उनसे कुछ डिमांड करें, ठीक है। तो उन्होंने कंट्रोल करना चाहा था बहुत जो पोर्शन था इस रूट का, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें और भी फायदा हो, टैक्सेस का फायदा हो, उन्हें गिफ्ट्स मिलेंगे, ट्रिब्यूट्स मिलेंगे दैट वर ब्रॉट बाय traders traveling through these routes. Okay, in return they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks of robbers. उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप हमें कुछ दोगे तो हम आपको जो रॉबर्स हैं, जो यहाँ पे जो चोरी करते हैं, डाकू करते हैं, जो लोगों पे हमला करके सामान छीनते हैं, उनसे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। किंग ने ऐसा उन्हें बोला। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वेयर द कुशानास। और कुशानास, जो कुशानास थे वो बेस्ट रूलर थे, इनका अच्छा कंट्रोल था सिल्क रूट पे। ओके, यही इन्होंने ही 2000 साल तक सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंट्रोल किया है। जो इनके पास मेजर सेंट्रल पावर था वो पेशावर और मथुरा था। टू सेंट्रल पावर दे हैव इज पेशावर एंड मथुरा। कुशानास के पास जो सेंट्रल पावर था वो कौन कौन सा था? पेशावर एंड मथुरा, मथुरा वृंदावन। ओके, और टैक्सेस वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम। इनके राज्य में टैक्सेस इंक्लूड था। अगर आप यहाँ से कोई ट्रेडिंग कर रहे हो देन यू हैव टू पे अ टैक्स। ओके, एंड इनके रूल्स में क्या होता था? अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सपोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। इंडस जो रिवर था, इन्होंने क्या किया कि अपने जो किंगडम थे उसको एक्सपेंड किया, सिल्क रूट को एक्सटेंड किया, ठीक है। और ये चीजें फ्रॉम सिल्क वाज शिफ्ट टू वेस्ट वाज टू द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर तक इनका सिल्क रूट का जो स्प्रेडिंग था, जो फैल गया, ठीक है, कि ट्रेडिंग होती है। द कुशानास वर अमंग द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन। ऑलवेज रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुशानास जो थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कुशानास द पावरफुल रूलर ऑफ द सिल्क रूट, इन्होंने ही पहली बार गोल्ड कॉइन को इन्वेंट किया। दे यूज्ड गोल्ड कॉइन, ओके, इशू कराया था इन लोगों ने गोल्ड कॉइन। ये पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू कराया था। एंड दिस वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रोड। और ये पैसा जो गोल्ड कॉइन था ये ट्रेडर्स के थ्रू यूज होता था सिल्क रूट में। सो today we have completed about the silk road, about the kushanas, about they have issued a gold coin, about the Peshawar and Mathura, they ruled over this two kingdom, okay, and they have to pay, the traders who use this route, they have to pay taxes. I hope it is clear to everyone. Thank you so much. Thanks for watching this video.